اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قوت گویائی عطا فرمائی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید تعجب ہوا تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تو تصور بھی نہیں اور میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ بھی نہ لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خامند کے یا بغیر کسی اور بات کے اولاد دے سکتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذہ کی تکالیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد ذہ کی تکالیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھا کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے
तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन के बाद जब हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर अपने घर तशरीफ लाई तो बस्ती वालों ने देखा कि आपकी गोद में एक बच्चा है। उस बच्चे को देखते ही बस्ती वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे और हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहने लगे कि तूने यूसुफ से जिना किया है, ना तो तेरा बाप ऐसा था और ना ही तेरी माँ ऐसी थी। इसी दौरान तमाम बस्ती वाले हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब जमा हो गए और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे और आपको अजीयतें देने लगे और आपके खानदान वाले कहने लगे कि मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके मंगेतर यूसुफ को ज़ना के जुर्म में सजा मिलनी चाहिए। इन बस्ती वालों की बातों को सुनकर हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बस्ती वालों से कहा कि मैंने कोई ज़ना नहीं किया और ना ही मैंने कोई बदकारी की है। उस वक्त बस्ती वालों ने हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम्हारे पास कौन सा सबूत है और कौन तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देगा। उस वक्त हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चे की तरफ इशारा किया जो कि उस वक्त दूध पी रहा था। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला मुझे नबूवत और किताब अता फरमाएगा। उसके बाद उस बच्चे ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया है और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया है और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया और अल्लाह तबारक व तआला की सलामती है मुझ पर जब मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला का मोर्जा देकर और उस नौमौलूद बच्चे की गुफ्तगू सुनकर कुछ लोग तो यकीन करने लगे कि हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह तबारक व तआला का मोर्जा है। लेकिन ज्यादातर लोग हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने लगे। इन तमाम तर तकालीफ के बावजूद वक्त यूं ही गुजरता रहा और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल की हुई तो यहूदियों ने उनको बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया और बैतुल मुकद्दस के हालात खराब होने लगे। तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गई। आपने अपनी जिंदगी के 13 साल मिस्र ही में गुजारे। इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप दोबारा फलस्तीन में तशरीफ ले आई। फिर अल्लाह पाक ने 30 साल की उम्र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मौजज़ात से नवाजा था, जिनमें काबिल जिक्र मौजज़ात ये हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए और माँ की गोद में ही गुफ्तगू करना शुरू कर दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाकर जब उस पर फूंक मारते तो वो उड़ने लगता और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी नबीने की आंखों पर हाथ फेरते तो उसकी नजर दुरुस्त हो जाती और कोढ़ और जुजाम के मरीजों को हाथ लगाते तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते और जो कुछ भी लोग खाते या पीते या अपने घरों में छोड़ कर आते उन सब का आपको इल्म होता और आप सब कुछ तफसील के साथ उन लोगों को बता देते। इन सब मौजज़ात के बावजूद भी बनी इसराइल की कौम आप पर ईमान न लाई और आपको झुठलाते रहे और इसी तरह आप पर तोहमत लगाते रहे और चंद लोग ही ऐसे थे जिनकी तादाद 12 बताई जाती है। यही लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए जिनको कुरान पाक में हवारियून के लक़ब से पुकारा गया है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कुफ्र को महसूस कर लिया तो कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है। तो हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह तबारक व तआला की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम आपके ताबे और फरमाबरदार हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग की गरज से अपने हवारियों को लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी बनी इसराइल के लोगों ने आपकी बढ़ चढ़ कर मुखालफत की और आपको तरह तरह की तकालीफ पहुँचाना शुरू कर दी और हर तरह से आप अलैहिस्सलाम को अज़ीयतें देना शुरू कर दी। फिर एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अजीब फरमाइश की जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यूं बयान फरमाता है, और जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार इस बात पर कादिर है कि वो ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाना नाज़िल फरमाए? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। तो वो बोले,
हमारी ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा और हम इस नाज़िल होने वाले खाने पर गवाह रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद का दिन करार पाए, यानी हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिज़्क अता फरमा, बेशक तेरी जात बेहतर रिज़्क अता फरमाने वाली है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं तुम पर जरूर खाना नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन जो इसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा दर्दनाक अजाब मिलेगा कि अहले आलम में से किसी को ऐसा अजाब न मिला होगा। हजरत अम्मार बिन यासर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान से दस्तरखान उतरा जिसमें रोटी और गोश्त था। उनको हुक्म मिला कि खयानत ना करना और जखीरा ना करना और ना ही कल के लिए जमा करके रखना, लेकिन उन लोगों ने खयानत की और उस खाने को जखीरा किया और कल के लिए जमा करके रख लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस नाफरमानी पर उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उन लोगों को बंदरों और सूअरों में तब्दील कर दिया। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के वो नाफरमान लोग अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के अंदर मुब्तला हुए और वो बंदर और सूअर बना दिए गए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 33 साल की हो गई तो उस वक्त तमाम यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और आपको सूली पर चढ़ाने का फैसला कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शाम का इलाका रूमियों की जेरे निगरानी था। यहाँ उनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो भी काफिर था। इस तरह यहूदियों ने उस हुक्मरान को भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कर दिया और उनको सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया। चुनाचे इस तरह उस बदबख्त हुक्मरान ने यहूदियों की बात मानते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला कर लिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत आसमानों पर उठा लिया, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उन्होंने कहा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जो अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर थे। हालांकि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम का मुशाबे बना दिया गया। और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो गुमान में पड़े हुए हैं और शक के अलावा उनके पास कोई इल्म नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह तबारक व तआला गालिब हिकमत वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर जमीन पर नाजिल होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही वो नबी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज्यादा बार आया है, और आप ही बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ही बनी इसराइल वालों को नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिशारत दी थी, जिसको कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इस तरह बयान फरमाता है, और जब हजरत ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल वालों, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा बिशारत सुनाता हूँ। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 600 साल बाद तक कोई भी नबी ना आया, और फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा।